highlighted energy. Now let us try to decode these energies with the help of the tarot cards. So tarot cards की help से हम ये energies को decode करने की कोशिश करेंगे. तो stay positive and stay focused. तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सुंबल अपनी ज़िंदगी से एंड करना चाहती है? ज़िंदगी से जो उसे हमेशा से ऐसा लगता था सुंबल को कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा जब वो रीस्टार्ट कर पाएगी अपनी लाइफ को, एक नई सिरे से देखेगी, अपनी ज़िंदगी के जितने भी उसके नेगेटिव मोमेंट्स आए हैं लाइफ को, उनको पीछे छोड़ के वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी. ऐसा उसने नहीं सोचा था, लेकिन अब वो ये सारी बातों को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं. वो फेलियर्स नहीं देखना चाहती है. वो जो इमोशनल लॉस उसने झेला है उस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ को ज़िंदगी भर उसको लेकर रोते रहना, ऐसा नहीं करना चाहती है. वो अपनी लाइफ को एक नई सिरे से स्टार्ट करना चाहती है. तो सुंबल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम. शी नोज़ दैट lingering into the past energies will not serve her anything. She knows that she has to remove all the negativity from her life. She knows that she has to move on. She has to see that she is starting a new life, because life is very beautiful and there are a lot of opportunities waiting for her, and she has to take that baby step towards it. So she is not thinking about what is going to happen tomorrow. She is not thinking about the outcome. She just wants to take a plunge into it. So she is very confident and she wants to restart her life afresh. तो ये जो आया है 6 of Cups, तो सुंबुल जो मैंने कहा ये वही आ गया यार. ये पास्ट की एनर्जीज है. तो सुंबुल अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना चाहती है. सो सुंबुल वांट्स टू फॉरगेट अबाउट हर पास्ट एंड शी वांट्स टू restart afresh. This is what this combination says. तो सुंबुल की ज़िंदगी में अगर कभी भी उसे ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ किसी ने ख़राब किया है, मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, मुझे लोगों ने चीट किया है, या मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, या फिर मुझे वो वैल्यू नहीं की गई, अगर उसकी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई फीलिंग आई होगी तो वो इस एनर्जी को भी भूल जाना चाहती हैं और अपनी लाइफ को अच्छे पर्सपेक्टिव में देखती है और आगे बढ़ना चाहती है. तो सुंबुल वांट्स टू come out of all those things whenever if she felt that there were people who insulted her, there were people who disrespected her, there were people who cheated on her, there were people who did not treat her well or something. If this kind of an experience, if she ever got in her life in the past, then she wants to come out of it. She doesn't want to take any revenge on anyone, and she doesn't have any ill feeling about anybody now. She's not feeling jealous about anyone. She feels that unnecessarily, if you carry the baggage of all such energies, it is going to be difficult for you to see yourself growing. So she wants to end all these energies and definitely start something new in her life. So if ever she felt that her best friend was into third party, or if her best friend was enjoying with his friends, if her best friend was not including her in this joy, she is not complaining, she is not feeling that she missed something. She feels that okay, it is okay even if she was not a part of their joy or part of their that union or something. She is feeling life has got lot of better opportunities for her, and if she keeps that confidence in herself, she will definitely get lot of such kind of people who she can mingle with and enjoy her life. तो सुंबुल बिल्कुल ही ऐसा सोच रही है कि अगर उसकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ होगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने
उसे अपनी पार्टीज़ में नहीं बुलाया, सबसे अच्छे दोस्त ने उसे अपने गैंग का हिस्सा नहीं माना, उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी कमी उस वक़्त महसूस नहीं की। तो उसे ऐसा लगता है कि ये सारी एनर्जी के पीछे अपने रोते रहना और सोचना कि मुझे क्यों नहीं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया गया। तो वो ये अब आगे सोच रही है कि मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ मुझे और भी बेहतर लोग मिलेंगे और बेहतर तरीके से मैं उन लोगों के साथ एंजॉय कर पाऊँगी। तो सुम्बुल बिल्कुल यही सोच रही है। तो सुम्बुल हो सकता है सुम्बुल को ऐसा लगा है कि यस, उसको कभी थर्ड पार्टी में डाला गया, कभी उसे ऐसा लगा है कि ज़िंदगी में उसे ऑप्शन की तरह यूज़ किया गया। उसे ऐसा लगा है कि उसे शायद एक क्या कहना, एक ऐसे मोहरे की तरह यूज़ किया गया जिसको अपने बेनिफिट के लिए लोग यूज़ करते हैं। अगर उसे ऐसा कभी लगता था तो अब वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सोचना नहीं चाहती है। वो सोचती है कि नई ज़िंदगी आगे हसीन है और उसे आगे बढ़ते रहना है। तो सुम्बुल इफ़ शी एवर थॉट that people used her or people misused her or people always felt that she is somebody who they can take advantage of because she is very popular, because she is so much liked by so many people. So this time she feels that even if people they think this way, she has no complaints. She feels that okay, it's okay to be used, it's okay that people do not take her that seriously or something. And she now feels that it is time that she should move on and she should start her life afresh, and there are a lot of opportunities ahead waiting for her. So इसीलिए सुम्बुल जो है उसने ऐसे लोगों से किनारा भी कर लिया है एंड शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि इसको किसी के लिए कोई इल फीलिंग है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक रिस्पेक्टफुली रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती है, अपने वो छोटे मोटे जितने भी उसके सपने हैं जो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर किसी और वजह से पूरे नहीं कर पा रही थी, वो सारी चीज़ें वो पूरी करना चाहती। तो सुम्बुल फील्स दैट whatever she could not enjoy in the past or whatever she was not able to enjoy because of lot of responsibilities on her shoulder, she feels that now is the time that she can encash on all these opportunities and fulfill all her childhood dreams as well. तो ये हो रहा है सुम्बुल। तो सुम्बुल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और वो जो रुक गई थी वो, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो पास्ट के बारे में या दूसरों के बारे में सोच रही थी, वो चीज़ को एंड करना चाह रही है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रही है। तो सुम्बुल अपनी ज़िंदगी की वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना चाहती है जो अपने ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ले सकती है। तो सुम्बुल वांट्स टू बिकम दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स who wants to take all her decision on her own, and she wants to set those rules and regulations for herself. She doesn't want anyone to interfere in her life. This is what I get from. तो सुम्बुल अपने ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लेना चाहती है, कॉन्फिडेंट है वो अभी, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी ज़िंदगी में अब इंटरफेयर करे। सुम्बुल का ये जो कार्ड आया है, सुम्बुल जो भी उनके दोस्त हैं उनके साथ उनकी अच्छी खासी साठगांठ है। सुम्बुल अपने ज़िंदगी में फ्रेंड्स भी खुद ही ढूंढेंगी, किसे अपने साथ रखना है किसे नहीं रखना है, ये सारी बातें उनको पता है। सुम्बुल चाहती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ रहे जिनके साथ उनके दिमाग उनके मिजाज मिलते हैं। सुम्बुल की लाइफ में अगर कोई एक ऐसा बंदा होगा तो वो अभी भी उनके साथ है। अगर उनकी फहमान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो मान के चलिए वो दोनों अभी भी साथ हैं। इस चीज़ से ये साबित हो रहा है। So Sumbul wants to take all her decisions and of her life, and she doesn't want anyone to interfere in her personal life. At the same time,
She wants to be with people who are like-minded. She wants to be with people who respect her. She wants to be with people who have same interest. And if ever Fehmarn has got such kind of traits in him, then yes, you have to be very sure about the fact that these two are still together. Yes. So Sumbul will definitely get some soulmate in her life for sure if she starts her life afresh. सुम्बुल को अपना सोलमेट 110% मिलेगा एंड वो बहुत खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है तो सुम्बुल अपनी ज़िंदगी में वो सारे नेगेटिव लोग, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को निकाल के बाहर कर देना चाहती है. उसी चीज़ को एंड करने के बारे में उसने सोच रखा है जो वो करके भी दिखाएगी. तो ये थी हमारी सुम्बुल जो अपनी लाइफ से ये एंड करना चाहती थी. सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. लेकिन हम सुम्बुल के लिए एक अच्छी सी एक एडवाइस ले लेते हैं. तो यूनिवर्स, इफ़ यू हैव एनी एडवाइस फॉर सुम्बुल, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड. सुम्बुल को जो एडवाइस दे रहा है यूनिवर्स वो यही दे रहा है कि आप अपने ये जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड फियर है उसमें से निकलिए. आप अपने आप को किसी से भी इन्फीरियर बिल्कुल मत समझिए. आप अपने ज़िंदगी में अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिए. आप उन्हीं लोगों के साथ उठिए बैठिए जहां आपको जैसा आप उनके साथ बिहेव करती हैं वैसा ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलता है उनसे. आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वैल्यू करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको लव एंड केयर शेयर करेंगे. तो इस एनर्जी से बिल्कुल निकल जाए. तो यूनिवर्स सेज दैट शी हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, दिस फियरफुल एनर्जी, दिस सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड fear which she has already created in her life. She may be somebody who's got this inferiority complex, so she has to come out of this inferiority complex. She has to have that confidence in herself. She has to understand the fact that she is equally good as others are, and she has to come out of this energy. She has to meet such people, or she should be with such kind of people who believe in equal give and take, who help her, love her, they care for her. Such kind of a people she should look for, and if she comes out of this negative energy, she will definitely find such kind of people who will definitely be loving and caring towards her. So ये थी सुम्बुल की रीडिंग. इसके साथ ही रीडिंग यही ख़त्म होती है. मैं फहमान की भी रीडिंग थोड़ी देर में लूँगी और आपको बताऊँगी कि फहमान का क्या है जो दिल में भरा हुआ, वो जो छुपा रहा है. ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए. प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट. सो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय गाइस.